Okay, fine guys. So she's, I think she's back. सर So वो guys, सर yes. वो वॉशरूम गई है. Okay, fine. So guys, today we will start new topic that is filters in servlet. Okay, filters in a servlet. So any idea what is filter, guys? I think I have discussed little bit about in last session about filters. Tell me, what do you mean by filters? Yes, guys, my screen is visible. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So guys, today we will discuss, filters. What is the role of filters? For example, this is my web application. Okay. I have one web application. Yes. So okay. So I'm going to close it, guys. सर से डाउट पूछो. Suppose I'm going to create new web application for filters. Okay. Dynamic web Doubt? project and Okay. my project name यही is डाउट सर, एक तो फिल्टर नहीं कराया सर ने, दूसरा servlet ये डाउट था filter. कि हम ऑब्जेक्ट किधर यूज़ करें. नहीं नहीं जो मेरा वो So आ रहा first of all, I'm कि using वही it सेशन बार बार 2.5. चल Okay. जा रहा था. वो तो इनवैलिडेट से ठीक हो गया. हाँ. Yeah. Generate web.xml deployment scripter also. So XML file will come, and you in the beginning we need to change one file. Remember now, हैंग हो रहा है. one library we need to change it. Yes, guys. बट अगर सही से होगी ठीक है, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा. Yes, guys. This file we need to change it now. Yes or no? यस सर. So बोला जाता सर. this thing again, बोला जाता. same thing I'm doing the updation in my current project. नहीं ऐसे ही, यस नो, यस सर. Jagata library. मैंने Okay. सब बता दिया. सही है. वर्ड में इनको दे दो यार, कितनी देर काम करना है. Now error will go, and I need to set Can you one read? servlet API also using which option build path. उनके चक्कर में ना ये बेचारे अपने क्लास में बात करेंगे. External jar, and I will need to set path of servlet API which is available in my Tomcat server. Okay. Suppose you know what, this is my new web application, and here I'm removing all the files here. I need only one file, index.html. ये जा रहे हैं. Okay. So here what I'm doing, तभी तो कहने I need to create only single HTML page, that is index.html. Here also आज भी नहीं की शादी में. शादी का मुश्किल लग रहा है मुझे. पंजाब This is में why लग रही मुझे. index मुझे पता page. है ये ना मतलब खांसी से And I will create one servlet also. How to create servlet, you know very well. I will right click in this folder, then I will create one servlet. So here I'm giving the name, suppose stack. Okay. ये जब जाते हैं ना घर 3 बजे तो सचिन सर खुद करते हैं कि Servlet one. So I'm going to extend it. Next सचिन सर करते हैं and finish it. सचिन सर ने खुद कहा इनको हर्षिता को ये ऑफर मिली हुई है कि हर्षिता मनप्रीत और ये विशाल और ये कौन थी चौथा हर्षवर्धन. So first of all, what I need to do,
I कि need to अगर set आप the 3 बजे गए ना, content मैं type खुद रेगुलेट करूँगा। सचिन से of मैंने ये बात की थी। हाँ पता है कि क्लासेस that लगाऊंगा। सचिन से content लाइव type. क्लासेस का ज़्यादा बेनिफिट है हमें ज़्यादा। ये ना जो बंदा कर रही है, ये उसके अगेंस्ट जा रही बात, उसको So what समझाया I कर need घर to set जाके। always text slash HTML. Okay. Then what I need to do, I need to create object of what? Printer writer. So I need to provide response. Okay. Object. So object writer. Fine guys. मतलब टाइम वेस्ट मत करें, थोड़ा समझा इसको। उस दिन मैंने इसके सारे प्रोग्राम चल बीच में So एक में this thing I am आया printing. था। Okay. So what we do to save the time, we need बट इसको to. थोड़ा समझाया कर, ऐसे कोई फायदा नहीं हो रहा। Where is my session tracking technique? So I will copy and paste the coding of index page, which we have done number of times. Okay. अगर I'm just copying this code and और pasting कोई here. होता ना, Okay, तो guys. यही सजेशन देता। Yes, guys. Is it clear? यस सर। So here I mentioned servlet 1. Okay. So automatically control will transfer to servlet 1. We know I have what? Email and password. Okay. सैटरडे And के how बाद है to ना, fetch तो it? मेरे सब वो Request सही हो गया, daughter. और मैं समझ नहीं आ रहा Get उनको रिकॉर्डिंग का क्या parameter. क्या कहूँ। And I will mention here email मुझे 1. ना मतलब बुला बुला के लेके जा रहे हैं, तूने मना कर, मैं तुझे मना कर दिया ना कॉफ़ी का, ये जाएंगे इसे जबरदस्ती लेके गए मुझे नीचे, फिर पास को मना कर दिया कॉफ़ी का। सैटरडे के बाद है ना ज़्यादा सीरियस हो गई, इसको कैसे मना करूँ इसको, मैं समझ नहीं आ रहा कुछ। Right, so every time we are using this या common उनको दे दूँ, example so that you can understand very बाकी easily. ग्रुप में डाल दूँ ना, ऐसे कर करनी है कर ले, नहीं करनी ना कर, इतना मत सोच। करनी है कर, नहीं करनी रहने दे। कर तो रहा हूँ मैं, My email कर तो is, रहा हूँ, अब बता। कर तो रहा हूँ। so I am printing it. तेरा कर तो रहा हूँ, उसका नहीं है, बट मैंने ग्रुप में नहीं डाल दिया। तो फिर क्यों Okay, कर रहा है? my password is, इनको दे दो, ग्रुप में ही डालूंगा, ग्रुप में हर्षिता भी है, रोहित भी है, उनको नहीं देंगे। okay, fine. So I have printed these two things, okay? या To तो किसी को भी differentiate मत दे, it, जैसे ये we मैंने can कहा। mention our या तो here किसी को भी tag मत दे, या also. तो हर So it should display on ऐसे तो तुम different सामने lines. से पूछ लेगा, बड़ा अच्छा लगेगा तेरे को कि तो तुम मैंने बता देना उसको, कुछ क्या बात हुई है, बताएगा? कुछ बात हुई बस, Here I मैं will बता नहीं print सकता। also. या तो तेरे पास हाफ ही रीजन ये है कि हाँ मैंने चला। की ही नहीं है। So what I need to do, where I want to move. So I need to create two web pages. Where I need to create, this is my web app now. Here what I will do, I will create one folder that is web. Okay, web. So in this folder, I will create two pages. One is welcome. Okay. Okay, guys. Now I'm creating the JSP page. Did you work in JSP, guys? Yes, guys. No, sir. So now I'm not creating index page. I'm creating JSP page. अभी गए थे ना। Okay. So this is my 6 बजे जाएगी JSP ना, page. In बस JSP 6 page, बजे you की can notice your first line page directive. Okay. मैं कुछ शुरू हो गया। Guys, do you want to learn JSP? यस सर। So guys, in your curriculum, it is not mentioned JSP, but I will provide you
few recorded session I have. Okay, I will provide to you. You can do self study. Thank you, sir. Thank you. great. Thank you. Okay. Suppose I mentioned this is my welcome page. Okay, guys. This is my welcome page. So similarly, I'm going to create one more JSP page. Here, what I mentioned, student.jst. Again, I'm just printing one message, not doing any more thing. ये क्या ये क्या हो रहा है? कॉल क्यों आ रही है? ये क्या हो रहा है? तेरा भी नेट रुक गया है? ये क्या हो रहा है? Fine, guys. Yes, sir. So I'm also using one more PR tag here. Welcome plus a student JSP. Okay, guys. Yes, guys, tell me yes or no. Yes, sir. ज़्यादा नहीं हुआ है। Let's see it is working or not. So I'm going to run this web application, run on server. So I'm just removing it. So guys, my web application is running. You can see the URL servlet filter. Okay. So same index page I took basically 1, 2, 3, 4, 5. So it is coming on my servlet one. Guys, tell me my email is admin and password is this. Okay. And I have two links. One is welcome, another is the student. If I click on welcome, okay. So what happened? Let's see. Yeah, it is going where? Welcome page na? Yes, guys. Suppose I'm going to copy this link. Okay, what I did? I have copied this URL and same URL I'm going to suppose run on any different browser. Okay, Internet Explorer. I'm trying to use it. I have pasted here. Suppose an unknown person trying to this URL directly in his system. Okay, in his system. I have entered. Okay, so it is working now. Yes, guys. So if any unauthorized person means कोई बाहर का person आ गया, उसने login भी नहीं किया, that person is trying to access this page directly, so it should be not valid ना. Tell me guys, अगर आप bookmark कर लो कोई भी URL किसी भी वेबसाइट का, आप login नहीं हो या किसी का पता लग गया किसी ने login किया हुआ है, उसका URL आपने नोट कर दिया, तो आप अगर डायरेक्टली एक्सेस कर लो तो सही है या नहीं? Tell me guys. तो कोई भी
पर्सन, इनवैलिड पर्सन आपकी इंफॉर्मेशन गेन कर सकता है ना, इनवैलिड पर्सन। यस सर। सपोज मैं वेलकम छोड़ो, मैं स्टूडेंट का उठाता हूँ, है ना, यहाँ पर वो चेंज कर देता है यूआरएल, स्टूडेंट डॉट जेएसपी, तो स्टूडेंट जेएसपी आ गया, राइट। मीन्स वो डायरेक्टली एक्सेस कर पा रहा है, कोई लॉगिन नहीं, कोई कुछ नहीं। ओके, यस गाइस। यस सर। तो ये नहीं होना चाहिए, मीन्स जो फ्लो है प्रॉपर, इट शुड नॉट बी वैलिड। ओके गाइस, तो इसलिए व्हाट वी विल यूज फिल्टर्स इन सर्वलेट। क्या हम डिस्कस करेंगे आज? फिल्टर्स इन सर्वलेट। अब प्रॉब्लम समझ में आई आपको? यस गाइस। यस सर। सपोज अब फिल्टर क्या है उसको डिस्कस करेंगे। So a filter is the object that is involved at pre-processing and post-processing of a request. Okay? जब भी कोई रिक्वेस्ट आ रही है, जब जैसे ही आपने लॉगिन पर क्लिक किया, तो प्री प्रोसेसिंग मीन्स रिक्वेस्ट को प्रोसेस होने से पहले, पोस्ट प्रोसेसिंग मीन्स रिक्वेस्ट के प्रोसेस होने के बाद ये एग्जीक्यूट होते हैं। टेल मी गाइस, इज इट क्लियर? यस सर। इट इज मेनली यूज टू परफॉर्म फिल्टरिंग टास्क। जैसे आप अपनी कंपनी में एंटर कर रहे हो, है ना, एंटर करने से पहले चेक किया जाता है ना कि मास्क डाला है कि नहीं, या फिर सैनिटाइजर करते हैं, तो उस चीज को आप क्या बोल सकते हो? प्री प्रोसेसिंग। ओके, क्लियर? यस सर। या फिर जैसे आपका डे कंप्लीट हुआ कंपनी में, जैसे आप बाहर की तरफ जाते हो, है ना, तो भी चेकिंग किया जाता है। पोस्ट प्रोसेसिंग, यू आर नॉट कैरिंग एनी प्रॉपर्टीज ऑफ योर कंपनी, मींस कुछ भी, राइट। तो उस टाइप की चेकिंग को हम क्या बोलते हैं? पोस्ट प्रोसेसिंग। तो अगर इस चीज को हम रिलेट करें अपनी वेब एप्लीकेशन में, सर्वलेट के टॉपिक में, उसको हम कैसे कंसीडर करेंगे? So it is mainly used to perform filtering tasks such as conversion, logging, compression, encryption, description, input validation. मतलब कुछ भी ऐसी कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, so आप रिक्वेस्ट को जानने से पहले चेक कर सकते हो। Okay, you can check it. It is mainly used to perform filtering tasks such as conversion, logging, compression, encryption, decryption. Is it clear? Tell me yes or no. So सर्वलेट फिल्टर इज प्लगेबल। जो आपका सर्वलेट फिल्टर होता है वो क्या होता है गाइस? मतलब जो फिल्टर्स का काम होता है, ऐसा नहीं है कि आपको कोई कोड में चेंज करना है, नो, सर्वलेट के कोड में कोई चेंज नहीं करना, आप उसको प्लगेबल कर सकते हो। मीन्स आपकी एक्सएमएल फाइल में ऐड कर सकते हो, एक्सएमएल फाइल से रिमूव कर सकते हो। अगर आपका सर्वलेट 2 सीरीज में है, अगर इफ योर सर्वलेट कम्स अंडर 3 सीरीज, तो उसके लिए सर्वलेट ने एनोटेशन प्रोवाइड की है, आप एनोटेशन के थ्रू भी अपने फिल्टर को इंप्लीमेंट कर सकते हो। इज इट क्लियर? यस सर। So your servlet filter is pluggable. Its entry is defined in web.xml file. If we remove the entry of filter from web.xml file, web.xml file क्या होती है आपकी? Deployment descriptor file, right? Deployment descriptor file. So filter will be removed automatically and we don't need to change the servlet. तो automatically वो remove हो जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल ये आपका ब्राउजर है, आपका सिस्टम है, आपने रिक्वेस्ट सेंड की, मान लो आप फेसबुक पे लॉगिन कर रहे हो या आपकी अपनी वेब एप्लीकेशन पर लॉगिन कर रहे हो, तो जो आपकी रिक्वेस्ट है वो तो यहाँ पर जाएगी ना सर्वर पे, लेकिन सर्वर से पहुँचने से पहले 2 फिल्टर लगे हुए हैं जी। आप फिल्टर कर रहे हो, गाय आप टी बनाते हो ना, घर में चाय बनाते हो ना, उसको भी हम फिल्टर करते हैं, यस गाय? यस सर। ठीक है, तो उसी तरह जैसे रिक्वेस्ट आ रही है तो उस रिक्वेस्ट को भी हम पहले चेक करेंगे। चेक किसी भी वे से कर सकते हो, आप लॉगिन के लिए कर सकते हो, कंप्रेशन के लिए कर सकते हो, इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन के लिए कर सकते हो, इनपुट वैलिडेशन के लिए कर सकते हो, राइट, किसी भी पर्पस के लिए कर सकते हो। इट डिपेंड्स अपॉन योर रिक्वायरमेंट, लेकिन हमने कॉन्सेप्ट को लर्न करना है, ये काम कैसे करना। सो
हम उसको यहाँ पर एक चेक लगा सकते हैं, फिल्टर लगा सकते हैं, ठीक है। अब वो कैसे लगाएंगे, कहते हैं यूजेज क्या है फिल्टर के, कहते हैं रिकॉर्डिंग और इनकमिंग रिक्वेस्ट के किस किस यूजर ने लॉगिन किया है ना, उसकी आईपी एड्रेस को स्टोर कर लो फिल्टर से। लॉग्स ऑफ आईपी एड्रेसेस, उसकी आईपी एड्रेसेस का एक लॉग बना लो, एक टेक्स्ट फाइल बना लो, जो भी आएगा उसका आईपी एड्रेस स्टोर होता जाएगा, क्योंकि रिक्वेस्ट होने से पहले ही वो चेक कर लेगा। कन्वर्जन, डेटा कंप्रेशन, इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, इनपुट वैलिडेशन। एडवांटेज ऑफ फिल्टर क्या है, फिल्टर इज प्लगेबल। मैंने आपको बताया है ना कि आपका फिल्टर क्या है, प्लगेबल है, आप लगा भी सकते हो, एक्सएमएल फाइल से रिमूव भी कर सकते हो, सर्वलेट के कोड को कोई चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फाइन गाइस, वन फिल्टर डोंट हैव डिपेंडेंसी ऑन टू अनदर रिसोर्स, एक फिल्टर की किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं होती। सो अब क्वेश्चन राइज होता है कि फिल्टर को हम यूज कैसे करते हैं। देखो फिल्टर, इफ यू वांट टू यूज फिल्टर देन यू नीड टू यूज फिल्टर टैग। आपको फिल्टर टैग, जैसे आपने सर्वलेट कॉन्फ़िग एंड सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट किया था ना गाइस, रिमेंबर, उसको यस भी सर। हम web.xml में ऐड करते थे, राइट। इसको यस भी सर। हम web.xml में ऐड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके पास एक फिल्टर टैग है, फिल्टर के अंदर दो पैरामीटर है, फिल्टर नेम एंड फिल्टर क्लास। ओके, फिल्टर का नाम क्या देना है, जैसे आपको याद हो वहां पर अगर हम किसी सर्वलेट को ऐड करते थे, सर्वलेट का दो पैरामीटर होते थे, सर्वलेट नेम एंड सर्वलेट क्लास, राइट। सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास है फिल्टर नेम एंड फिल्टर क्लास। मतलब फिल्टर की एक हम ना क्लास बनाएंगे, जो भी क्लास बनाएंगे उसका एड्रेस यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। ओके, यस सर। उसके बाद फिल्टर मैपिंग होगी। फिल्टर नेम तो सेम रहेगा जो आपने यहाँ पर फिल किया है। मेन चीज है ये यूआरएल पैटर्न, कि किस किस रिक्वेस्ट को आप मैप करना चाहते हो, उसको पैटर्न के अंदर ऐड कर दोगे आप। ओके, तो दिस इज द सिंटैक्स हाउ टू ऐड फिल्टर। थोड़ा सा और डीपली इसे अंडरस्टैंड करेंगे कि हम इसे कैसे कर सकते हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फिल्टर, रिक्वेस्ट जा रही है, रिस्पॉन्स जा रहा है, लेकिन मैं आपको मेन चीज बताता हूँ। कहते हैं अगर आपने फिल्टर बनाना है, यू राइट, आपको एक क्लास बनानी पड़ेगी, एक क्लास के अंदर आपको एक इंटरफेस इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, उस इंटरफेस का क्या नाम है, फिल्टर। इंटरफेस का क्या नाम है गाइस, फिल्टर। तो जैसे ही आप फिल्टर को इंप्लीमेंट करोगे अपनी क्लास में, इट प्रोवाइड यू थ्री मेथड। फर्स्ट मेथड है इनिट मेथड, सेकंड मेथड है डिस्ट्रॉय मेथड। जो मेन प्रोसेसिंग करता है वो है डू फिल्टर। इट इज सिमिलर टू सर्वलेट, जैसे सर्वलेट का लाइफ साइकिल था, अगर आपको याद हो कि उसके अंदर एक इनिट मेथड होता था, एक डिस्ट्रॉय मेथड होता था, लेकिन जो मेन मेथड था वो कौन करता था काम, यस गाइस, सर्विस में। सर्विस मेथड। तो सिमिलरली फिल्टर के कंसेप्ट में जो मेन टास्क है वो कौन परफॉर्म करेगा, डू फिल्टर। इज इट क्लियर। यस तो सर। डू फिल्टर की मेन फंक्शनैलिटी है इनिट एंड डिस्ट्रॉय, तो एक बार ही कॉल होंगे। इनिट इनिशियलाइज होएगा वन टाइम, डिस्ट्रॉय डिस्ट्रॉय होएगा इन द एंड। लेकिन जो डू फिल्टर मेथड है ये एवरी टाइम एग्जीक्यूट होएगा जितनी बार रिक्वेस्ट आएगी। ओके, दिस डू फिल्टर विल एवरी टाइम रन एवरी टाइम जितनी बार ही रिक्वेस्ट आएगी। तो जो इसका फर्स्ट मेथड है init called by web container to indicate that filter it is available for service. Okay, called by web container to indicate that it is available for a service. और सेकंड मेथड क्या है, yes, डू फिल्टर। cannot use filter before method was executed. Okay, यस सर। सर सेकंड मेथड का, सर सेकंड मेथड का है और वो सेकंड नहीं है। सेकंड मेथड डू फिल्टर है। बोल रहे हैं कि आवाज बंद हो गई है, बंद हो गया। बंद हो गई। सर ऑडिबल नहीं हो। so guys this is the main method. Okay, ये init सर method है। सर Yes, सर लास्ट आपने जो इनिट के बाद बोला ना सर, वो ऑडिबल नहीं था, स्किप हो गया सर। ये लाइन के बाद। यहाँ पर यस सर। बस यही है, मैंने कुछ बोला ही नहीं था। ओके सर। सर ऐसे लगा जैसे मतलब ऑडिबल ही नहीं है।
ओके ओके सर। सो गाइस अब मेन मेथड क्या है, इनिट जो इनिट होता है उसमें क्या होता है, इंटरनली फिल्टर कॉन्फ़िग का ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज होता है यूज टू प्रोवाइड एनी कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर। बट अगर मैं आपको बताऊं कि फिल्टर की मेन वर्किंग किस में होती है, वो होती है डू फिल्टर मेथड में। ठीक है, मेन प्रोसेसिंग यही काम करता है। और जो आपका डू फिल्टर होता है इट कंटेन 3 पैरामीटर। ओके, हाउ मेनी पैरामीटर गाइस? 3 पैरामीटर। वो कौन कौन से हैं? मेथड हैव 3 पैरामीटर, एक रिक्वेस्ट का है, एक रिस्पॉन्स का है, और एक चेन का होता है। also called by web container does all the filter processes called filter chain dot filter do filter method। ओके, अब ये काम कैसे करता है ये देखो। दिस इज द सिंटैक्स ऑफ डू फिल्टर मेथड। ओके, डू फिल्टर में कितने पैरामीटर्स हैं गाइस? फर्स्ट पैरामीटर है सर्वलेट रिक्वेस्ट। सर्वलेट रिक्वेस्ट इफ यू रिमेंबर ये किसमें होता था? जेनेरिक सर्वलेट में होता था ना? यस गाइस, ये पैरामीटर, ये इंटरफेस, यस सर। और ये सर्वलेट रिस्पॉन्स। थर्ड है आपका फिल्टर चेन। ये चेन क्या है कि आपकी रिक्वेस्ट को आगे फॉरवर्ड करता है फिल्टर होने के बाद। ओके, फिल्टर चेन। तो इस चेन को हम आगे कॉल करते हैं, राइट? डिस्ट्रॉय तो डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये देखो, ये आपका क्लाइंट है, आप जितने मर्जी फिल्टर लगा सकते हो, फिल्टर 1, फिल्टर 2, फिल्टर 3, और ये सर्वलेट पर पहुंच जाएगा। ऑल्सो यूज मोर देन वन फिल्टर फॉर कस्टमाइजिंग अ पर्टिकुलर रिक्वेस्ट सर्वलेट। तो ऐसे फिल्टरिंग आप कर सकते हो। सपोज फर्स्ट फिल्टर तो ऐसा है जो तीनों रिक्वेस्ट को फिल्टर कर रहा है। सेकंड है जो सिर्फ सर्वलेट 2 के लिए है ना, ये फर्स्ट 2 के लिए। इट डिपेंड्स अपॉन यू, योर लॉजिक। अगर आपको लॉजिक समझ में आ गया, आप कुछ भी कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो। तो ये जब डू फिल्टर चलता है उसमें 3 पैरामीटर होते हैं, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, चेन। जो डू फिल्टर है चेन, ये देखो ये थर्ड वन है ना, चेन डॉट डू फिल्टर। चेन डॉट डू फिल्टर के पहले वाला पोर्शन इसको हम बोलते हैं प्री प्रोसेसिंग। ओके, चेन डॉट डू फिल्टर के बाद वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? पोस्ट प्रोसेसिंग। और जो सेंटर में चल रहा है ये एक्चुअल प्रोसेसिंग। इज इट क्लियर? यस सर। तो हम बोलते हैं ना प्री प्रोसेसिंग एंड पोस्ट प्रोसेसिंग। तो ये तो आपकी रिक्वेस्ट है मेनली, चेन डॉट डू फिल्टर। उसके पहले वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? प्री प्रोसेसिंग। अभी तो निकल गई। और उसके नेक्स्ट वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? नेक्स्ट टाइम कर दूंगा कल से। यार गाइस, पोस्ट प्रोसेसिंग। इज इट क्लियर? यस सर। पिछले वाले एडिट करा गया ना। So these are, I think, I have prepared some slides. अब इसको यूज कैसे करना है, ठीक है, वो देखेंगे हम। तो ये हमारा प्रोजेक्ट है जी, हमें कुछ नॉलेज होगी कि फिल्टर क्या होता है। तो यहाँ पर सपोज आई एम क्रिएटिंग वन फिल्टर। आप मैन्युअली भी बना सकते हो, ये इसने ऑप्शन भी प्रोवाइड की हुई है, देखो फिल्टर दी हुई है ना गाइस। तो यहाँ पर मैंने एक पैकेज बना दिया फिल्टर का, और मैं अपनी एक क्लास बना देता हूँ माई फिल्टर, कुछ भी नाम दे सकते हो आप, माई फिल्टर। हमने नेक्स्ट पर क्लिक किया, ओके, अगेन नेक्स्ट, फिनिश। जैसे मैंने किया एक फिल्टर बन के आ गया। टेल मी गाइस, ये फिल्टर आ गया ना बन के। इसमें एक डिस्ट्रॉय मेथड है, ये कंस्ट्रक्टर हो गया, ये डू फिल्टर हो गया। बेसिकली जो ये एरिया है, ये एरिया क्या है? प्री प्रोसेसिंग का। ओके, और ये चेन डॉट डू फिल्टर के बाद जो चलेगा ये किसका एरिया है? पोस्ट प्रोसेसिंग का। टेल मी गाइस, इज इट क्लियर? यस सर। और हम अपनी ना एक्सएमएल फाइल भी चेक करते हैं। जैसे मैंने ये क्रिएट किया, क्या हमारी एक्सएमएल फाइल में कुछ चेंज हुआ? लेट मी चेक। गाइस ये देखिए, एक फिल्टर ऐड हो गया ना ऑटोमेटिकली। यस गाइस, यस सर। तो ये फिल्टर नेम है और ये यूआरएल पैटर्न है। ओके, क्या है गाइस? यूआरएल पैटर्न।
और ये फिल्टर क्लास है कि फिल्टर पैकेज के अंदर आपकी क्लास है माई फिल्टर। यहाँ पर यूआरएल पैटर्न मेन चीज है, किसको देना चाहते हो। सपोज मैंने यहाँ पर क्या दे दिया, यूआरएल पैटर्न स्लैश रू देना है आपने, ओके स्लैश मैंने दे दिया अपनी वेलकम पेज को। वेलकम पेज मेरा किसके अंदर है, वेब फोल्डर के अंदर है ना गाइस, welcome.jsp। ओके गाइस, कि मैं चाहता हूं मैं जब भी welcome.jsp को कॉल करूं तो मेरा फिल्टर कॉल हो जाए, अपने आप कॉल हो जाएगा फिल्टर। ओके गाइस, यस सर। बट एक चीज नोट करने वाली है, तो जैसे मेरी रिक्वेस्ट आ रही है वो तो HTTP की रिक्वेस्ट आ रही है, सर्वलेट के पास जब मेरी रिक्वेस्ट जाएगी उसमें पैरामीटर कौन से हैं, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट है ना। यस गाइस, यस सर। और जो मेरा फिल्टर है यहाँ पर कौन सी है, HTTP। यस गाइस, सर्वलेट रिक्वेस्ट है, यस सर। तो मिसमैच है ना। यस सर। मैं इसको पहले करूंगा टाइप का, ये मिसमैच ना हो। ये जो रिक्वेस्ट है ये किस टाइप का है, सर्वलेट रिक्वेस्ट का। मैं इसको ऐसे लिख लूंगा, अभी जो भी रिक्वेस्ट है वो मेरी किस टाइप में कन्वर्ट हो जाए, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, क्योंकि जो मेरा सर्वलेट है वो तो इसको अंडरस्टैंड करता है, राइट। क्योंकि मेरे पास तो HTTP सर्वलेट है, वो इस टाइप के पैरामीटर को अंडरस्टैंड ही करता है। यस सर। ओके, और उससे पहले जो भी रिक्वेस्ट आ रही है, क्योंकि मैंने रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स को ही आगे फॉरवर्ड कर, तो अगर हमने कुछ प्रिंट करना है तो कैसे करेंगे गाइस, हम प्रिंट राइटर चाहिए होता है ना हमें हर बार। यस सर। तो प्रिंट राइटर तो हमने क्रिएट किया हुआ है यहाँ पर, फाइन। यहाँ पर हमने कॉपी पेस्ट कर लिया, ओके। दिस इज माई फिल्टर। पहले मैं कुछ भी नहीं करूंगा, ठीक है, मैं जस्ट चेक करूंगा क्या मेरा फिल्टर रन हो रहा है या नहीं हो रहा। ओके गाइस, क्योंकि मैंने अपनी web.xml फाइल में, आप ध्यान से देखिए किसका एड्रेस दिया है यूआरएल पैटर्न में, welcome.jsp का। तो मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि जब भी मेरा welcome.jsp कॉल हो, ये किसको कॉल करे, माई फिल्टर को। और जैसे माई फिल्टर कॉल हो तो एक मैसेज जरूर आए, दिस इज माई फिल्टर, क्योंकि आगे तो मैंने चलो लॉजिक लगाएंगे जस्ट चेक करने के लिए कि मेरा फिल्टर रन हो रहा है या नहीं। अब हमें अपना जो सर्वर है वो फिर से रन करना होगा, क्योंकि मैंने अपनी web.xml में कुछ चेंजेस किए हैं, उसको नहीं उठाएगा बाय डिफॉल्ट। So I'm going to run my server again. Is it clear? यस सर। तो जस्ट मैंने यही चेक करना है कि जैसे ही मैं अपने welcome.jsp को कॉल करता हूँ क्या मेरा फिल्टर कॉल हो रहा है या नहीं। ये देखिए कि सर्वलेट 1 है, मैं वेलकम पर क्लिक कर रहा हूँ। यस गाइस, ये कॉल हो रहे हैं ना। यस सर। टेल मी यस और नो। तो मैं कुछ भी चेक कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेज से आने से पहले मेरा फिल्टर चेक हो रहा है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इफ आप कुछ भी लॉजिक लगा सकते हो, जैसे आप सेशन में वैल्यू ऐड कर लोगे, है ना। मान लो ये आपका सर्वलेट 1 है, जो भी वैल्यू यहाँ पर आ रही है मैं उसको किस में स्टोर कर लूंगा गाइस, टेल मी। सेशन कहाँ पर कर लेंगे, HTTP सेशन में। हम कर चुके हैं ना, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड। HTTP सेशन, तो यहाँ पर क्या किया हमने, जो भी रिक्वेस्ट है रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन, ओके। इस सेशन के अंदर हम एट्रीब्यूट को
सेट कर सकते हैं। ओके, कैसे कर सकते हैं? ये आपका क्या है? ईमेल। और ये क्या है आपका? यहाँ पर ईमेल हम स्टोर कर देंगे। गाइस, तो जो भी ईमेल आई मैंने उसे सेशन में स्टोर कर दिया। फाइन, क्योंकि सेशन तो आपकी तब तक रहेगा ना जब तक आपकी एग्जीक्यूट है। ओके, एप्लीकेशन रनिंग में है। तो जैसे फिल्टर आया तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि जैसे मेरे पास फिल्टर आया तो पहले तो मैंने अपना HTTP सेशन का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। सेशन सेशन request dot get session. Is it clear, guys? Yes, sir. Request dot guys, कौन सा मेथड यूज किया था हमने? यूज किया था, जस्ट वेट, get session. Okay, same thing I'm going to copy and paste here. Okay. Get session and define for the type servlet request. क्योंकि जो हमारे पास रिक्वेस्ट है, ओके, मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया ना REQ में। यस गाइस, ओके। तो मैं यहाँ पर क्या लगा दूंगा लॉजिक। सपोज मैं admin@gmail कर रहा हूँ। ओके, सपोज इफ सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट, सपोज इफ माई सेशन इज नॉट नल। ओके, सपोज अगर उसमें कोई वैल्यू ही नहीं है तो वो एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हैं ना, नल पॉइंटर। इफ इट इज नॉट नल, if session dot get attribute क्या है गाइस? हमने ईमेल स्टोर किया था ना। सपोज मैंने यहाँ पर एक कंडीशन लगा दी। ओके, admin@gmail.com। ओके, सपोज ये कंडीशन लगा दी कि अगर तो एडमिन के इक्वल ही हो तो वो क्या करे? यस गाइस, इस चेन डॉट डू फिल्टर को पास कर दे। इसका मीनिंग क्या है कि आपके सर्वलेट के ऊपर पास हो जाएगा जहां पर रिक्वेस्ट जा रही थी। और सपोज सेशन इज नॉट नल। ओके, अगर ये नहीं है तो हम क्या लिख देंगे? यस गाइस, आउट डॉट प्रिंटलन प्लीज log in first. Okay, log in first। और अगर सेशन ही मींस नल है तो क्या आएगा गाइस? तो इसके लिए तो लिखना पड़ेगा ना हमें। यस गाइस, तो मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ तभी ही पास होएगी जब मेरा क्या होएगा, मेरी ईमेल इस पर्सन ने लॉगिन किया होगा। सपोज मैंने ये कंडीशन लगा दी, तब तो ये आगे जाएगा, चेन डॉट डू फिल्टर सेम रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स आगे चला जाएगा। अदरवाइज ये क्या प्रिंट कर देगा? प्लीज लॉग इन फर्स्ट। इज इट क्लियर? Yes, sir. So suppose I'm going to run again. This is my servlet. This is my servlet। जा रहा है ना, यहाँ पर कॉल हो रहा है। सेम चीज को मैं किसी और
ब्राउजर में करते हैं। हाँ जी, अब एग्जीक्यूट हो रहा है गाइस? यस गाइस, यस सर। दिस इज माई फिल्टर आ रहा है ना, और तो नहीं आ रहा कुछ? यहाँ पर क्या आ रहा था? दिस इज माई वेलकम पेज, ओके। बट ये मैसेज भी नहीं आ रहा कि क्या नहीं आ रहा गाइस, कि प्लीज लॉग इन फर्स्ट, राइट? ये भी मैसेज नहीं आ रहा ना। यस सर। तो कहीं ना कहीं देखो नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ रही है यहाँ पर। कैन नॉट इन्वोक ऑब्जेक्ट बिकॉज रिटर्न जावा एक्स गेट एट्रीब्यूट इज नल, बिकॉज जो चीज हम फेच करना चाह रहे हैं वो नल रिटर्न कर रहा है, ओके। ये क्या रिटर्न कर रहा है? नल। और मैंने यहाँ पर फोर्स भी रिटर्न नहीं किया ना, फोर्स सेम आई थिंक होता है, प्रीवियस सेशन को कैरी फॉरवर्ड करता है आगे, ओके। इसको फिर से करके देखें। welcome, okay, and now I'm going to move here and मैं इसको फिर से कर रहा हूँ। No, it is not running. Force. क्या दिस इज माई फिल्टर आ रहा है ना? बिकॉज वो क्या कह रहा है कि या जो सेशन है, सेशन यहाँ से हम जो भी गेट कर रहे हैं वो क्या रिटर्न कर रहा है? नल रिटर्न कर रहा है गाइस, ओके। क्या वैल्यू आ रही है? सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट नल आ रही है यहाँ पे। तो we need to check it why it is coming, because it is returning null, तो null पॉइंटर आ रहा तो कंडीशन मैच नहीं हो रही, okay. So we need to check it why it is not coming. So guys, this is my servlet 1. यहाँ पर हमने क्या किया, एक सेशन का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, एंड हियर व्हाट आई एम डूइंग, ईमेल हमने स्टोर किया था गाइस, ईमेल, और इस ईमेल को हमने एंटर किया, राइट। सेट एट्रीब्यूट, और जैसे ही हमने इस चीज को फिल्टर के ऊपर एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि method get session is undefined for type server request, okay। तो यहाँ पर मैं जो सोर्स रिटर्न कर रहे हैं, ओके, इफ सेशन इज इक्वल टू नॉट नल, ठीक है, नहीं है जी। Suppose here I am printing out dot println. Here I am printing what? Session dot email, okay. Let's see. Yes guys, same email ID आ रही है ना? Yes guys, यस सर। तो यहाँ पर तो सेम शो कर रहे हैं, admin@gmail.com, where I have printed there, and when I'm comparing with session.get attribute, मे बी ये क्या रिटर्न कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है गाइस, ओके। और हम कंपेयर किसके साथ कर रहे हैं? स्ट्रिंग के साथ करते हैं,
So we can do one thing. I'm printing here ना, मैं इसको किसी एक वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं इसको. ओके, see guys, now it is returning null ना. See error coming ना, because session dot get attribute returning object, but मैं उसे एक string में स्टोर कर रहा हूँ. So I need to typecast here. क्या करना पड़ेगा? typecast. And here अब मैं अपनी string को इसके साथ कंपेयर करूंगा ईमेल के साथ. फाइन गाइस, अब एक स्ट्रिंग का स्ट्रिंग के साथ कंपैरिजन हो रहा है. ओके, so I'm going to refresh it. Suppose admin 1 2 3 4 5 6 7 8. So this is coming. If I'm filtering welcome, this is my filter और यहाँ पर आ रहा है. राइट, अब मैं सेम यूआरएल को सपोज मैं किसी और ब्राउजर में कॉपी पेस्ट करता हूँ डायरेक्टली, कोई भी एक्सेस करने की ट्राई कर रहा है तो मैं एंटर करता हूँ. राइट, क्या कर रहे हैं, इसको एंटर कर रहे हैं. स्टिल इट इज व्हाट इज सेइंग, दिस इज माय फिल्टर. डू वन थिंग, इसको फिर से रन करता हूँ. ओके, आई थिंक दिस टाइम इट शुड वर्क. Yes. Welcome. Now it is running. I'm checking in different tab. Okay. Enter. Yes, guys. Now it is working. Guys, message आ रहा है ना? Please log in first. Yes sir. ओके, तो दिस इज माय फिल्टर. इसको तो मैं कमेंट ही कर देता हूँ, ये तो मैसेज ही ना आए. तो गाइस, अब इसका बेनिफिट क्या है? अब मैं जैसे इसको रिफ्रेश करूँ, है ना, कि कोई भी अनऑथोराइज्ड पर्सन ये ट्राई करता है तो क्या आएगा? प्लीज लॉग इन फर्स्ट. ओके, अब इसको हम ये क्यों बोलते हैं कि ये प्लगइन है? जो हमारी web.xml फाइल है ना, उसके अंदर आप प्लगइन कर सकते हो. जैसे मैंने यूआरएल पैटर्न किया कि ये मेरे जब जैसे ही मैं अपने welcome.jsp को रन करूं तो मेरा फिल्टर पहले एग्जीक्यूट हो. सपोज सेम फंक्शनैलिटी मैं चाहता हूं जो मेरा student.jsp है उसको भी अगर मैं एक्सेस करूं तो सेम फंक्शनैलिटी एग्जीक्यूट हो. ओके, यस गाइस, अब सेम फंक्शनैलिटी एग्जीक्यूट होगी फॉर बोथ पेजेस, माय welcome.jsp के लिए भी और स्टूडेंट सर्वर के लिए. Yes guys, अब चल रहा है. दिस इज माय वेलकम पेज. अगर इस पेज को मैं किसी ब्राउजर के ऊपर लेके जाता हूँ, किसी भी और ब्राउजर के ऊपर, आई एम प्रेसिंग प्लीज लॉग इन फर्स्ट. आ रहा है ना? डायरेक्ट तो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा गाइस. सपोज अब सेम मैं अपने student.jsp को भी रन करने की कोशिश करता हूँ. हाँ जी, सेम कोड आ रहा है. तो इट मीन्स हमारा सर्वलेट वर्क कर रहा है ना? टेल मी यस और नो. जब भी रिक्वेस्ट जाएगी मेरा फिल्टर पहले एग्जीक्यूट होगा. ओके, इज इट क्लियर और नॉट? तो क्या बेनिफिट लगा आपको फिल्टर्स का? एक टाइप की सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है ना आपको. यस, सिक्योर. तो जो आप यहाँ पर कॉल कर रहे हो फिल्टर, इसके बाद आप कुछ भी प्रिंट करते हो पोस्ट प्रोसेसिंग में एग्जीक्यूट हो रहा है. यहाँ पर कुछ भी प्रिंट करोगे तो एग्जीक्यूट होने से पहले बाद में प्रिंट होगा, और इससे पहले जो भी आप काम कर रहे हो ये प्री प्रोसेसिंग हो रही है. तभी हमने डिस्कस किया था इट इज फिल्टर इज व्हाट is an object that is invoked at the pre-processing and post-processing of a request. Is it clear? Yes, guys.
So any doubt? Guys, any doubt till now? सर नहीं। So guys, this is all about your, servlet which I have discussed with you. तो कुछ चीजें हैं जो JSP में है, आई विल प्रोवाइड यू सम रिकॉर्डेड सेशन, उसको देख लिया करना, लर्न कर लेना। देखो गाइस, ये आपका क्या है, JSP पेज है। इसमें ना कुछ स्क्रिप्टिंग एलिमेंट्स होते हैं, ओके, कि आप इसके ऊपर भी जावा का कोड लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल ये मेरा एक स्क्रिप्टिंग एलिमेंट है, डेक्लरेशन, ओके। इसके अंदर मैं JSP के पेज में ही मीन्स कोड लिख दिया, जावा का चलेगा ये। मैंने इसको प्रिंट कर दिया जी, प्रिंट करना है, ये आपका एक्सप्रेशन स्क्रिप्टेड होती है, मैंने ए लिख दिया, पीछे सेमीकोलन लिख रहा, इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन टैग। जावा के कोड को आपके JSP के ऊपर ही प्रिंट कर देगा। तो जैसे ही आपका ये वेलकम था, अगर मैं यहाँ पर इसको प्रिंट एग्जीक्यूट करूं तो क्या करेगा ये, देखो वैल्यू आ गई ना 10 गाइस, टेल मी यस और नो, 10 आ गई ना वैल्यू। लेकिन जो ये लिखा आ गया, क्योंकि ये इसको तो मैं जावा का कमेंट एक्सेप्ट नहीं करता ना, इसका कमेंट सेपरेट होता है, ये होता है कमेंट, ओके। और JSP की एक और बेनिफिट है, जैसे मैंने ये कमेंट लिख दिया, ये ना मान लो ये आपका इंडेक्स पेज है ना, इसमें भी काफी सारे कमेंट लिखे हुए हैं ना, और ये आपका वेलकम पेज है, इसमें भी एक कमेंट लिखा हुआ है। JSP का कमेंट कभी भी सोर्स में दिखाई नहीं देता, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा सकता हूँ। ये देखो, इसको तो मैंने कमेंट किया, ये चला जाएगा, 10 आ गया। जैसे मैं इसका सोर्स देखूं, है ना, सोर्स, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, ये कमेंट दिखाई दे रहा है ना यहाँ पर, ये नहीं देना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, वेट करो, इसको हम क्या करते हैं, रिफ्रेश नहीं हुआ होगा मे बी, या अभी भी आ रहा है, राइट। सपोज हम इसको करते हैं, या फिर से रन करते हैं, इसको हम फिर से रन करते हैं, 1 2 3 4 5, तो वेलकम के ऊपर गए हम, तो ये प्रिंट कर रहा है, या यहाँ पर ये शो कर रहा है, ओके फाइन, मे बी आई एम रॉन्ग, ओके, ये शो कर रहा है, पहले शो नहीं कर रहा था, क्या ब्राउजर का इशू ना हो यहाँ पर, ओके फाइन। एनीवेज, तो जो और चीजें हैं गाइस, जैसे आप प्रिंट कर सकते हो, है ना, अगर आपने जावा की कोडिंग करनी है तो एक स्क्रिप्टलेट टैग होता है, ये देखो, ये आपको फ्रीडम देता है कोई भी जावा का कोड लिखना, कुछ भी, ओके। जैसे यहाँ पर आपने एक और वेरिएबल ले लिया था, int b = 20, दो ले लिए वेरिएबल, और यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, int c = a + b। फाइन गाइस, JSP के ऊपर कोडिंग हो रही है ना जावा की, बताओ मैं आपको, सर ये एक साथ ही कर सकते हैं, ये जो कोड देखो हम अगर अलग-अलग आपने किसी वैल्यू को डिक्लेयर या इनिशियलाइज करना है तो उसके लिए तो ये टैग होता है, ओके, यस सर, डेक्लरेशन टैग। अगर आपने जस्ट प्रिंट करना है, यहाँ पर इक्वल टू का सिंबल है ना, आप डायरेक्ट वैल्यू इनिशियलाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप वहां पर क्रिएट करते थे ना रिक्वेस्ट, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, यस यहाँ पर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यूज करो आप, इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट होते हैं। ओके सर, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ गेट सर्वलेट नेम, ओके, गेट अपने आप प्रिंट होएगा कि ये रिक्वेस्ट किस सर्वलेट से आ रही है, ओके। ये देखो, इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, क्या आ रही है, लोकल होस्ट से आ रही है, किससे आ रही है गाइस,
लोकल होस्ट से हाँ। लोकल होस्ट से मतलब मैंने ये तो नहीं कोई क्रिएट तो नहीं किया कि HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट होता है, नहीं किया ना गाइस। हम एक प्रिंट राइटर का करते थे ना ऑब्जेक्ट प्रिंट, इफ यू रिमेम्बर। यस प्रिंट करने के हाँ, अब यहाँ पर डायरेक्ट यूज करो, ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट यूज कीजिए। ये जावा का कोड आप यहाँ पर लिख सकते हो, आउट डॉट प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ओके, कोई नहीं, आपने वो ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करना जैसे आप लिखते थे प्रिंट राइटर आई आउट रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर, आप डायरेक्ट यूज करो। ठीक, हाँ जी आ गया हेलो वर्ल्ड। यस गाइस, यस सर। आप वहां पर बनाते थे ना ऐसे कुछ सेशन। यस गाइस, सेशन इज इक्वल टू रिक्वेस्ट है ना, गेट सेशन। यहाँ पर कुछ नहीं लिखना, यहाँ पर डायरेक्ट सेशन यूज करो आप। ओके, सेट। तो ये चीजें मतलब JSP पेज आपको बहुत ही फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। अगर किसी को सर्वलेट समझ में आ गया, वो JSP बहुत इजीली समझ में आ जाएगा उसे। अब अगर मैं कंपैरिजन करूं JSP और इंडेक्स मतलब HTML में, HTML में आप ये कोडिंग नहीं कर सकते जावा की, लेकिन JSP में आप कर सकते हो। जो भी JSP पेज होता है वो इंटरनली किस में कन्वर्ट होता है, सर्वलेट में। किसमें कन्वर्ट होता है गाइस, सर्वलेट। ओके। इसलिए JSP बड़ा पावरफुल है कि आप JSP के बीच में अपना जावा का कोड लिख सकते हो। ओके, बेसिकली JSP में कौन कौन से कंसेप्ट आते हैं मैं आपको बता दूं। जैसे स्क्रिप्टिंग एलिमेंट्स आ गया, ओके, नंबर 1। Why these things are not in your curriculum, still I am explaining you for your benefit, okay। स्क्रिप्टिंग एलिमेंट्स, और क्या है आपके पास, डेक्लरेटिव लाइब्रेरी होती है ना, डेक्लरेटिव टैग्स होते हैं। तो वो 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट होता है आपका पेज, जैसे आपका ये पेज है, इस सिंबल से स्टार्ट होते हैं, ठीक, इस सिंबल से स्टार्ट होते हैं वो। सेकंड आपका हो जाता है क्या, इंक्लूड। थर्ड आपका हो जाता है टैगलिब। ये आपके स्क्रिप्टिंग होते हैं, ओके। तो इस कमेंट को मैं रिमूव करता हूँ, इसको कंट्रोल शिफ्ट स्लैश, ओके, कमेंट आ जाएगा कंट्रोल शिफ्ट स्लैश। तो इसको यूज कैसे करते हैं ये देखो, तो आ गया ना इंक्लूड, किसी फाइल को इंक्लूड कर सकते हो, फाइल को आ दे दो, वो फाइल यहाँ पर आ जाएगी। टैगलिब बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, मैं जस्ट आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ और रिकॉर्डेड सेशन कुछ दे दूंगा, उसको देख के सीख लेना, ओके। ओके सर, थैंक ये क्लियर गाइस, ये आपकी पेज डेक्लरेटिव्स होती हैं। 3 तरह की डेक्लरेटिव्स होती हैं, पेज, इंक्लूड, टैगलिब। सेकंड चीज ये आ जाती होती है, जैसे स्क्रिप्टिंग टैग होगी, फिर आपके डेक्लरेटिव टैग्स हो गए, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या आ जाती है, एक्शन टैग्स। एक्शन टैग्स, ये भी 10-12 टाइप के होते हैं, ठीक है। एक्शन टैग को यूज कैसे करते हो, ये देखो बता देता हूँ मैं। JSP कोलन, ये लिस्ट आ गई थी, एट्रीब्यूट, बॉडी, एलिमेंट, फॉलबैक, फॉरवर्ड, गेट प्रॉपर्टी, इंक्लूड, आउटपुट, परम, ये सारी लिस्ट आ गई, ठीक है। ये सारे क्या है आपके, फाइन गाइस। यस। फिर आ जाता है आपके पास इम्प्लीसिट ऑब्जेक्ट, ओके। ये भी 8-9 टाइप के होते हैं इम्प्लीसिट ऑब्जेक्ट्स।
इसको कैसे यूज करते हैं ये देखिए, इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट जहाँ जैसे मैंने आपको अभी बताया था ना, ये आउट, यस यस गाइस, ये आउट क्या है, इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है, रिक्वेस्ट है ना। इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स हैं, आप अपने इस जावा वाले कोड में लिख सकते हो। ये देखिए, जैसे ये आउट हो गई, इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स है, ये देखो आउट, ये इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट हो गया आपका। उसके बाद रिक्वेस्ट, जैसे आप क्रिएट नहीं करते थे एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट का गाइस, यस गाइस, यस सर। तो सेम चीज आप यहाँ, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ आउट सोर्स में डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ, ठीक है, प्रिंट लन, तो यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं हम, रिक्वेस्ट, देखो आ गया ना। आप क्या लिखते थे, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर लिखते थे ना गाइस, आप डायरेक्टली यूज कीजिए, यहाँ पर कोई क्रिएट कोई नहीं करना ऑब्जेक्ट आपने। एक रिस्पॉन्स होता था ना एचटीटीपी सर्वलेट रिस्पॉन्स, ये भी एक इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है, आप डायरेक्ट यूज कीजिए। ओके, आप क्या यूज करते थे, सेंड रीडायरेक्ट, याद है आपको, आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। उसके बाद आपके पास क्या आ जाता है, आउट रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कुकीज होता था ना ऑब्जेक्ट, तो इसका भी ऑब्जेक्ट आप डायरेक्ट स्टोर कर सकते हो, गेट कुकीज। ओके, या फिर एक सबलेट कॉन्फ़िग होता था ना गाइस, जब गाइस कॉन्फ़िग डायरेक्ट यूज करो, ये ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है इसका। देखो गेट सबलेट कॉन्टेक्स्ट आपको दे रहा है, फिर कॉन्टेक्स्ट होता था, एक सबलेट कॉन्टेक्स्ट होता था, राइट, कॉन्टेक्स्ट, ये देखिए आ गया, यस गाइस, यस सर। इट इज योर, ओके, तो इसी तरह इसका भी होगा उसको पूछिए। कॉन्टेक्स्ट, वैसे आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, ओके, उसको पूछ। आउट रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कॉन्फ़िग कॉन्टेक्स्ट 1 2 3 4 5 ऐसे और भी होते हैं। ओके, सपोज मैं गूगल पे सर्च करके दिखा देता हूँ, पेज कॉन्टेक्स्ट भी होता था, एक पेज भी होता था, इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स इन जेएसपी। ओके, चाहिए ये देखिए तो आ गई है। आउट हो गया, रिक्वेस्ट हो गया, रिस्पॉन्स हो गया, कॉन्फ़िग हो गया, सेशन डिस्कस कर दिया था, एक्सेप्शन होता है, ठीक है, एक एप्लीकेशन होता है, पूरी एप्लीकेशन में वैलिड रहता है अगर इसमें आप कुछ ऐड कर दोगे। किस टाइप का होता है ये, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट टाइप का होता है गाइस। ओके, सेशन आपकी एचटीटीपी सेशन का हो गया, कॉन्फ़िग आपका सर्वलेट कॉन्फ़िग हो गया, जो सर्वलेट में आप यूज करते थे। पेज कॉन्टेक्स्ट ही होता है, पेज आपका ऑब्जेक्ट हो गया, एक्सेप्शन आपका थ्रोएबल हो गया। ये आपके इनबिल्ट इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट हैं जिसे आपको क्रिएट नहीं करना पड़ता, जेएसपी आपको बना बनाया प्रोवाइड करता है। ओके गाइस, यस यस गाइस, तो नेक्स्ट सेशन से ना हम क्या स्टार्ट करेंगे, हम करेंगे हाइपरमीट। ओके, एंड आई एम प्रोवाइडिंग यू यू नो वन प्ले लिस्ट, तो उसको पढ़ना शुरू कर देना। तो इसको पढ़ना शुरू कर देना आप। कौन सी सीरीज है ये, या दिस वन। ओके फाइन गाइस, यस सर। इसकी ना मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, फाइन।
Guys, have you received? This is the playlist. इस playlist में मैंने खुद रिकॉर्ड किए हुए हैं सेशंस, जैसे आपका सबलेट हो गया, JSP हो गया, हाइबरनेट भी हो गया, जिसे हमने करना है उसको। अब तो उसमें काफी चेंजेस आ गए हैं, ठीक है, वो हम नेक्स्ट सेशन से स्टार्ट करेंगे। इट विल रियली रियली हेल्प यू। फाइन गाइस, यस सर, थैंक यू। या और इसके ऊपर अपने लाइक कमेंट्स कर दियो, ठीक है, जैसे जैसे आप देखते जाओगे, राइट। तो जीएसपी आपके देखो गाइस करिकुलम में नहीं था, बट बेनिफिट तभी है अगर आपको जीएसपी आता है। तो जो जीएसपी की चीजें मैंने आज आपको ओवरव्यू बताया कि स्क्रिप्टिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, एक्शन टैग्स क्या होते हैं, तो हर एक चीज डिटेल में मैंने डिस्कस की हुई है इस प्लेलिस्ट में। उसको देखते जाइए, सीखते जाओगे, क्योंकि आपका बेस बन चुका है सब्जेक्ट। फाइन गाइस, यस सर। तो गाइस आई विल टेक योर सेशन टुमारो, ओके। और आपको फ्राइडे का ऑफ है? यस सर। So guys, would you like to take attend session on Friday evening or Saturday evening? Because in this week I will take your session Monday, Tuesday, Thursday और Saturday. Thursday के बाद आपने Friday को लगाना है या Saturday? Because Saturday में evening available होगा in this week. Yes guys. The Saturday evening will be fine. Sir, is Wednesday possible? Means The Saturday evening will be fine, sir. नहीं, अगर आप Wednesday करोगे तो Sunday, Monday, Wednesday कंटिन्यूस बताओगे आप? वही सर, वो दिक्कत हो जाएगी, इससे बड़ा Saturday evening ठीक है। Okay, fine. No issue guys, आप डिसाइड कर लेना, ठीक है। I will take your session. Sir, we'll let you know on Skype कि whether we want it or हाँ, not. no issue, आप ऐसे करना। आप मुझे कल तक बता देना, कल सेशन में डिस्कस कर लेंगे, राइट? Thank you, sir. You can Okay, sir, discuss, thank you. okay? Yeah. Okay guys, bye, take care. And you need to complete this task, okay? Tomorrow we will start our Hibernate session, and MySQL 8 should be installed in your system, okay? Yes sir.